Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss NOR as a universal gate. First of all, what is a NOR gate? Now NOR gate is exactly opposite of OR gate. OR gate adds two variables A plus B, and what NOR gate does is A plus B bar. So the symbol of NOR gate is this, where if this is one input A, this is input B, then the output Y is equal to A plus B bar. So let us see the truth table. Now this is the truth table. Now what happens here is, if you see the first case, A is 0, B is 0, so Y is equal to A plus B bar. So that means it is equal to 0 plus 0 bar, which is equal to 0 bar, which is equal to 1. Similarly, if you see the second case, that is A is 0 and B is 1. So what happens here is, y here again, if you add them, y will be equal to 0 plus 1 bar, which is equal to 1 bar, which is equal to 0. So in the same way, we can also verify third and fourth terms of this truth table. Now, how we get this? See, this is OR gate plus NOT gate. Then we get NOR gate. So this is how we get the symbol of NOR gate. Now we are going to design different gates using NOR gate. So first is NOT gate. Now what is the function of NOT gate? It acts as inverter. So it inverts the input. Suppose A is equal to 0, then Y is equal to 1, and if A is equal to 1, then Y is equal to 0. So let us take a NOR gate. Now here, since NOT gate has only one input, so we will combine these two. Now this is input A और यहाँ पर आई output Y, which is equal to A bar. तो यहाँ पर आप देखिए, यदि A input हम देते हैं तो what will happen? See, here you will get A. Now output will be Y is equal to A plus A bar. So A plus A is A. So we have this. अब आप इसे किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर लेट ए बी 0, सो इफ ए इज 0, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो गेट है आपने, क्योंकि एक ए दोनों इनपुट्स में दिया हुआ है, तो what you can write here is this will be 0 and this will be 0. So you will have y is equal to 0 plus 0 bar, which is equal to 1. So this inverts the input. So now let us design OR gate. Boolean expression for OR gate is y is equal to a plus b. So for this, let us take one NOR gate. अब इस NOR gate में यदि हम इनपुट देते हैं a और b, तो आउटपुट आएगा y is equal to a plus b bar. अब हम एक और NOR gate लेते हैं और इसको हम एज NOT gate यूज करेंगे. So this is how we make it a NOT gate, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, आउटपुट ऑफ गेट 1 टू द इनपुट ऑफ गेट 2. तो यहाँ पर आउटपुट आएगा y इज इक्वल टू a प्लस b. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ OR गेट. नेक्स्ट वी कम टू AND गेट. Boolean expression for AND gate is y is equal to a dot b. अब NOR गेट जो होता है वो प्लस साइन से काम करता है, डॉट से नहीं, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. इसको हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू a डॉट b, वी विल पुट 2 बार्स. तो डबल इन्वर्जन का मतलब सेम नंबर होता है, चेंज नहीं होता कोई. अब हम क्या करते हैं, जो इनर वाला पोर्शन है उसको हम ऐसे यूज लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a बार प्लस b बार. वाई? बिकॉज डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग a डॉट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार. तो अब इस पे हम NOR गेट को अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट NOR गेट है.
यहाँ पर हम इसको एज इन्वर्टर कन्वर्ट करते हैं, तो इन्वर्टर में इनपुट देंगे ए, सो द आउटपुट इज ए बार। फिर सेकेंड गेट लेते हैं, सेकेंड गेट के अंदर हम इनपुट देंगे बी, एज इन्वर्टर यूज करेंगे इसे, सो द आउटपुट इज बी बार। अब थर्ड गेट लेते हैं और उसमें हम गेट नंबर 1 एंड 2 की आउटपुट्स देंगे एज इनपुट टू गेट नंबर 3, लाइक दिस। तो यहाँ पर आउटपुट आएगी y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होल। तो इसको हमने अभी यहाँ पर कन्वर्ट किया है, लिख सकते हैं यहाँ पर हम y इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस होल बार इज इक्वल टू ए डॉट बी बार बार which is equal to a dot b. So this is our AND gate. So now we come to NAND gate. For NAND gate, the Boolean expression is y is equal to a dot b bar. ये जो है AND गेट का इन्वर्टेड फॉर्म है, तो इसके लिए हम पहले AND गेट डिजाइन करेंगे। सो दिस इज गेट नंबर 1, ये a को इन्वर्ट करेगा लाइक दिस। सो हियर a इज इनपुट, तो a बार आउटपुट आएगी। फिर सेकेंड गेट लेंगे और b को इन्वर्ट करेंगे, सो b इनपुट b बार आउटपुट। नेक्स्ट थर्ड गेट में हम गेट नंबर 1 एंड 2 के आउटपुट्स को एज इनपुट देंगे गेट नंबर 3 में। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगा y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होल बार। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय बूलियन लॉज, तो ये हमें पता है जो इनर वाली टर्म्स हैं ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी ए डॉट बी बार, देन वी हैव होल बार एंड दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी। सो नेक्स्ट वी कम टू इन्वर्टर, क्योंकि ये जो हमारी आउटपुट है ए डॉट बी, ये तो एंड गेट का एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो वी विल गेट नैंड गेट आउटपुट। सो हियर we will get NAND gate output. So this is how we will design NAND gate using NOR gate. Next we come to XNOR gate. Now the Boolean expression for XNOR gate is y is equal to AB plus A bar B bar. अब इसको डिजाइन करने के लिए हम NOR gate यूज करते हैं। दिस इज फर्स्ट गेट, तो यहाँ पर हम लेंगे A, so this will give A bar. सेकेंड गेट लेते हैं, सेकेंड गेट के अंदर ये है B, so we will get B bar. अब जो हमारा थर्ड गेट होगा उसके अंदर आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट विल गो एज इनपुट, और जो सेकेंड इनपुट होगी दैट विल बी B. तो यहां पर जो आउटपुट आएगी गेट नंबर 3 पर, दैट विल बी A बार प्लस B होल बार। इसी तरीके से आप नीचे देखिए, यहाँ पे हम गेट नंबर 4 लेते हैं, तो उसमें गेट नंबर 2 की आउटपुट जाएगी एज इनपुट एंड दिस विल बी A. तो इसकी जो आउटपुट आएगी इस गेट की, दैट विल बी A प्लस बी बार होल बार। अब आप इन दोनों इनपुट्स को देखिए, थर्ड और फोर्थ गेट की, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं गेट 3, तो गेट 3 की जो आउटपुट है दैट इज A बार प्लस B द होल बार। अगर डी मॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो A प्लस B बार होता है A बार डॉट B बार, सो वी विल गेट A बार dot B bar which is equal to AB bar. So that means this is equal to AB bar. Similarly, आप गेट नंबर 4 के आउटपुट पर अगर डी मॉर्गन से अप्लाई करते हैं, so this is A plus B bar, so this will be A bar dot B bar. So this will give A bar B. So this output is A bar B.
अब ये जो है दे विल बी गिवन एज इनपुट टू फिफ्थ गेट। इस फिफ्थ गेट में यदि आप इसको एज इनपुट देते हैं, then what will happen? You will get y here, which is equal to ab bar plus a bar b whole bar। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, गेट 5 के आउटपुट को। अब इस ये है y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी होल बार। अब इसे देखिए, यदि हम डी मॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, ए इसको हम एक टर्म मानते हैं, ओके, इसको दूसरी, तो वी विल गेट ए बी बार बार डॉट ए बार बी बार। अगेन ये इस पे और इस टर्म पे हम डी मॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार बार डॉट ए डबल बार डॉट बी प्लस बी बार। ये बाय डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ आप लिख सकते हैं, व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ, थोड़ा सा आपको याद आ जाए। इसमें कुछ नहीं है, ये दो लॉज होती हैं, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार एंड ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। बस इसी का यूज किया है हमने दोनों जगह। अब इसको देखिए आप, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो डबल इन्वर्टर्स है तो वो तो हट जाएंगे, डबल इन्वर्ट करने का मतलब है नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी बार। सो दिस विल गिव, ओपन द ब्रैकेट्स, ए बार ए प्लस बी ए प्लस ए बार बी बार प्लस बी बी बार, ओके, बी बी बार। तो इसमें देखिए ये 0 है और ये 0 है, these two are 0। So what we get, a bar b bar plus ab, which is the expression for XNOR gate. So we have done XNOR gate। So now we come to XOR gate। XOR gate का जो boolean expression होता है, that is y is equal to a bar b plus ab bar। अब इसको हम डिजाइन करेंगे, तो देखिए पहले हम फर्स्ट गेट लेते हैं और उसे इन्वर्टर बनाते हैं, यहाँ इनपुट देंगे ए, सो दिस इज ए बार। नेक्स्ट सेकेंड गेट लेते हैं और उसको भी हम इन्वर्टर बनाएंगे बी, सो द आउटपुट इज बी बार। नाउ वी टेक थर्ड गेट और उसमें एक इनपुट जाएगी ए बार और दूसरी इनपुट होगी बी, सो द आउटपुट ऑफ दिस गेट विल बी ए बार प्लस बी बार। Similarly here also, fourth gate we will take, and here the output of second gate will be given as input and the second input of fourth gate will be A. So what you get is A plus B bar whole bar। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया हुआ है, जो गेट नंबर 3 एंड 4 के आउटपुट्स है, एक्सनॉर गेट में हमने इसे सॉल्व किया हुआ है। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू A डॉट B बार and this is equal to A bar dot B। So now we will put another gate, this one। So let us connect the output of gate number 3 to gate number 5 and the output of gate number 5 to gate number 4, like this। So the output here will be AB bar plus A bar B the
whole bar. So next thing that we have to do is we will put another inverter here. और इस इन्वर्टर में जब ये इनपुट जाएगी गेट नंबर 5 की, तो we will get AB bar plus A bar B. So Y is equal to AB bar plus A bar B is the output of gate number 6. So let me label this as 6. So this is the output of XOR gate. This is how we are going to design XOR gate using NOR gate. So thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.